He spoke very wonderfully. Yes, we practice spirituality for all these reasons. But if we really see the word spirituality, it comes from the word spirit. And it is as natural for us as swimming is to the fish. जैसे एक मछली के लिए तैरना स्वाभाविक है, वैसे एक spirit soul के लिए spirituality is very natural. Does it make sense? We are spirit souls, so we are practicing spirituality. Like somebody can ask, "अरे मछली जी आप क्यों तैरते हो?" That is his nature. Fish is supposed to swim. In the same way as spirit souls, what we are supposed to do is practice spirituality. Because if we seriously consider in life, there are only three things that are permanent. First is God. Second is spirit souls, that are we. And third is our relationship with God. Apart from these three things, everything else is temporary. We can categorize permanent things in these three categories. Anything related to God is permanent. God Himself is permanent, eternal. His holy name is eternal. His scriptures are eternal. Anything related to spirit soul, like we all are spirit souls, we are eternal. और our relationship, हमारा जो भगवान के साथ रिलेशन है, संबंध है, वो परमानेंट है. सो नाउ भगवत गीता हमको बताती है कि भगवान कौन है, राइट? हाउ इट स्टार्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विथ हु आर वी, difference between body and soul, right? In second chapter, what we read in Bhagavad Gita, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि हम लोग बॉडी से डिफरेंट है. ये बॉडी के साथ ही हम लोग खत्म नहीं होते हैं. जैसे कि प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं एक कार का और एक ड्राइवर का. हम लोग कार हैं कि ड्राइवर हैं? व्हाट इज कार हियर? कार क्या है? अहंकार? आई एम कार? नो. हाँ, car is the body, very good, and we are the driver of the car, that is spirit soul. तो इतना तो हमको समझ में आया कि हम लोग स्पिरिट सोल हैं. अब बारी आती है समझने की कि भगवान कौन है. हु इज गॉड? सी प्रभुपाद टेल्स वेरी नाइसली दैट गॉड रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गो हैंड इन हैंड. स्वयं का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार दोनों साथ साथ में चलते हैं. लाइक सपोज यू वांट टू सी योरसेल्फ इन मिरर, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड? आपको अपने आप को आईने में देखना है, आपको क्या क्या लगेगा? What all things you will need? पहले तो हम खुद होने चाहिए आईने के सामने, right? And second most important thing is light. We need light. Like Munishi is writing, mirror and self with this body. Yes, but I am saying even more importantly, you need light. Suppose you are standing in front of mirror. मिरर भी है, आप भी हैं, लेकिन लाइट नहीं है, अंधेरा है. क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. So God realization is like sun, and self realization is like seeing ourselves in the mirror. हम मिरर में देख रहे हैं अपने आप को, that is self realization. But without God realization, we can't see ourselves. That is like having the light of sun. समझ में आ रहा है? Is it too confusing? So we need both things, sun and ourselves, to make perfect realization of God and ourselves. तो अब हम लोग अभी तक भगवद गीता से पढ़ रहे थे हम कौन हैं, व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस लाइक, हम लोग का पर्पस क्या है लाइफ का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कृष्ण, लेट्स टॉक अबाउट गॉड, कि व्हाई ही इज लाइक द वे ही इज. भगवान जैसे हैं वैसे क्यों हैं? देयर इज वेरी फेमस वर्स इन भगवद गीता, हम सबको याद है. महाभारत के टीवी सीरियल का टाइटल सॉन्ग में वो आता है. क्या है वो फेमस श्लोक? सबको याद है वो, इंडिया में सबको याद है वो. क्या है वो श्लोक? महाभारत सीरियल के टाइटल्स.
Yes, very good. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत. Hmm? What is the purpose of God's coming? भगवान आते क्यों हैं इस दुनिया में? पुराना एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने दुनिया बनाई. So Krishna is only answering in Bhagavad Gita why he came to this world, why he made this material world. क्या है उनका पर्पस? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां. To rescue the saintly persons, and to destroy the miscreants. साधुओं की रक्षा करने के लिए और demons का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए. These are the purposes for which Krishna descends. अब क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन है बेसिकली. इफ गॉड इज ओमनिशिएंट, अगर भगवान सब जगह पर हैं, एंड गॉड इज ओमनीपोटेंट, अगर भगवान में सर्वशक्ति विद्यमान है, तो क्या उनको पर्सनली आना पड़ेगा डिशुम डिशुम करने, फाइटिंग करने के लिए उनको पर्सनली आना पड़ेगा? इज इट रिक्वायर्ड? लाइक हम सबको पता है कि वो हमारे हार्ट में बैठे. इफ ही ब्लॉक्स वन ऑफ आवर आर्टरीज इन हार्ट, वी आर डेड. सो रावण की आर्टरी में बैठ के रामचंद्र could have just blocked his heart. उसके लिए उनको आके इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत नहीं थी. Is it really required for God to come and fight with the demons? Second question. Now at current time 2020 में apparently there is no incarnation. Apparently holy name is there, but ना तो रामचंद्र है ना कृष्ण है in the manifested form. तो क्या भगवान अभी अपना ड्यूटी नहीं करेंगे? क्या वो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां नहीं करेंगे? व्हाट इज द आंसर? अभी तो रामचंद्र नहीं है, अभी तो नरसिंहदेव नहीं है, अभी तो कृष्णा नहीं है, तो क्या वो अभी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां की? वो अभी भी कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकारनेशन देन? सर्टेनली नॉट जस्ट फाइटिंग विद द डीमंस. पर्पस ऑफ इनकारनेशन इज समथिंग एल्स. इज इट नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी? हम लोग जब भी भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं ना, एक पजल जैसा होता है. इफ यू गो आउटसाइड, ओ गॉड इज इम्पर्सनल, भगवान निराकार है. फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, उनका आकार भी है. कोई बोलेगा उनके पैर नहीं है, वो एक जगह पर विद्यमान रहते हैं. कोई बोलता है नहीं, उनके हजारों पैर है. कोई बोलेगा कि आप भगवान को मन से याद करो. कोई बोलेगा नहीं, वैष्णो देवी चढ़ के जाओ. जब भगवान का डिस्कशन होगा, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस, राइट? अगर आपके घर में एक सिंपल, अगर एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इवन दो यू आर एन इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, आप लोग क्या करोगे? इलेक्ट्रिक इंजीनियर होने के बाद भी अगर आपका एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू? सपोज आपने बैटरी चेंज की, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करोगे? is simply you will go to an expert, you will get it repaired, right? आप एक्सपर्ट के पास जाओगे ना. जैसे मानो आपकी मोटर बाइक काम नहीं कर रही, पंचर हो गया. You need an expert who knows how to change the tire, how to repair the stepney. बट जब भगवान का टॉपिक चालू होता है ना, सब आ जाते हैं मैदान में. हाँ, हम बताएंगे भगवान के बारे में आपको. इवन ठेले वाला भी इंटरेस्टेड हो जाएगा. हाँ, हम बताएंगे भगवान के बारे में. इज गॉड सच ए चीप टॉपिक? ही इज सर्टेनली नॉट ए चीप टॉपिक. Then why people just come and make puzzles about God? Because God has this right to keep himself safe. भगवान को ये पूरा राइट है कि वो अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखे. वो ऐसे कोई एरे गहरे नत्थु गहरे नहीं है जो सबके बस में आ जाए. लाइक इवन टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, we need some qualification, right? We need a proper reason to meet him. In the same way, when we talk about God, he's not a cheap subject. He's very important subject, or rather the most important subject. Therefore, when it comes to God,
it is very important that we understand what God is like through the light of scriptures. What is the need? क्यों दुनिया में भगवान ने अवतार लिया? Sometimes Prabhupada was challenged, Srila Prabhupada was challenged questions like, स्वामी जी, क्या आपके कृष्ण ऐसा एक पत्थर बना सकते हैं जिसको वही ना उठा पाए? अब ये क्वेश्चन में दो ट्रैप हैं. अगर वो बोलेंगे हाँ उठा सकते हैं, तो मतलब भगवान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उससे भारी पत्थर बना पाए. और अगर प्रभुपाद बोलेंगे कि बना सकते हैं, तो मतलब गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है कि वो पत्थर को उठा नहीं पाएंगे. दो ट्रैप हैं इसमें, है ना? तो प्रभुपाद ने बोला, yes, God has power to create that stone which he cannot lift, but later on he will lift it, because by the time you will understand that God has created a stone above his energies, and energies will increase further. Because God is ever, I mean, his energies are ever increasing. उनकी energies हमेशा बढ़ती जाती है. He is called Anandambudhi Vardhanam. Vardhanam means ever increasing. So because Krishna की potencies हमेशा बढ़ती जाती हैं, by the time he will create a stone which he cannot lift, his energies will increase and he can lift that stone. So basically why I'm telling this example is, people have so many puzzles regarding God, so many confusions about God. But the only way to understand about God is through the light of scriptures and from the people who know about God. Like, I was watching a video this morning. एक आदमी चैलेंज कर रहा था, अरे कृष्ण का जन्म हुआ है मतलब वो भगवान नहीं हो सकते, कृष्ण का नाम है मतलब उसके भगवान नहीं हो सकते. दैट preacher was so decent, but this person was challenging that preacher. तो उन्होंने बोला, अरे आपके बनियान का भी नाम है, तो भगवान का नाम क्यों नहीं होगा? इस कॉमन सेंस. समथिंग विच इज नॉट इन गॉड, हाउ इट कैन एग्जिस्ट इन यू? अगर आपका बर्थ हो सकता है, व्हाई गॉड कैन बी लिमिटेड दैट ही कैन नॉट टेक बर्थ? अगर आपका फॉर्म है, व्हाई गॉड कैन नॉट हैव फॉर्म? बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम गॉड. और अगर भगवान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके अंदर है, मतलब आप भगवान से ज्यादा सुपीरियर हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है. So it is very much common sense that God has all these qualities. Therefore, in Bhagavad Gita is very famous verse where Krishna says, "Janma karma cha me divyam." मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो दिव्य हैं, वो आपके जैसे नहीं है. अर्जुन को भगवान बोलते हैं, बहुत सारे जन्म हुए तुम्हारे और मेरे दोनों के, तुम सब भूल गए. तुम जब भी नया जन्म लेते हो फिर से हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल. मेरा जन्म ऐसा नहीं होता है. When I take birth, I come with शंख चक्र गदा पद्म. आई एम गिविंग नॉलेज टू माई पेरेंट्स. जन्म लेते से ही वसुदेव देवकी को बोल रहे हैं, जाओ मुझे छोड़ के वृंदावन जाओ. आई मीन, ऐसा कौन सा बेबी होता है जो बर्थ लेते से इंस्ट्रक्शन देने लगता है नर्स को, हाँ नर्स थोड़ा अच्छे से पहुंचो जरा, आपने अच्छे से साफ नहीं किया मुझे? नो. वी ऑल आर born in ignorance, but Krishna is not in ignorance. His birth and his activities are divyam. They are perfectly transcendental. इसीलिए भागवतम में कुंती महारानी, you know Kunti Devi, yes, mother of Pandavas. So Kunti Devi prays to Krishna that, oh Krishna, your activities, Janma Karma cha Vishwatman, they are bewildering. They are so bewildering. Why? Because you work, but you are inactive. आप सब कुछ करते हो, but then you remain unseen. हाँ? You take birth, but then still you are unborn. हाँ? You yourself descend in animals, men, sages, aquatics. आप सब जगह बर्थ लेते हो. आप एनिमल्स के बीच में बर्थ लेते हो या इनकारनेशन लेते हो. कौन से हैं इनकारनेशंस विद इन एनिमल्स? विच इनकारनेशंस आर विद इन एनिमल्स? ओके, मत्स्य. वरादेव, बोर इनकारनेशन. हाँ. नरसिंहदेव. नरसिंहदेव इज लाइक, you know, something like Spider-Man or some, you know, like in between men and animal. Hmm. Then who are among men? Rama, Krishna. Hmm. They are among men, human beings. Then among sages, Nar Narayan Rishi. Hmm. Among aquatics,
Matsya avatar, Kashyap avatar, tortoise incarnation, fish incarnation, all these incarnations are in this species. अब क्वेश्चन सेम ही है, जरूरत क्या है मछली बनने की, जरूरत क्या है कछुआ बनने की, जरूरत क्या है आधा लायन आधा मैन बनने की, जरूरत क्या है ह्यूमन बीइंग के रूप में आने की। आज मान लीजिए हमारे बीच में अगर भगवान प्रकट होते हैं, मान लीजिए बैंगलोर सिटी में विष्णु अवतार होता है, 12-13 फीट का, और 4 हाथ है, और सब कुछ एकदम लाइट है चारों तरफ, तो ज्यादा लोग बिलीव करेंगे, या कोई के घर में भगवान एक नॉर्मल एक छोटे बेबी के रूप से अपीयर होंगे तो लोग ज्यादा बिलीव करेंगे? किस चीज पे बिलीव ज्यादा करेंगे? वही बिलीव करेंगे, राइट? देन व्हाई कृष्णा takes incarnations or Vishnu takes incarnations in different areas like animals, like human beings? एक भी इनकारनेशन ऐसा नहीं है कि अरे भगवान डायरेक्ट प्रकट हुए और उन्होंने कुछ करना शुरू कर दिया, नहीं। ही टुक सम स्पीशी, ही टुक सम फादर मदर। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा, व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज वेरी सिंपल, he wants to identify with us, he wants us to feel that he is one among us. Hmm? Until and unless he will not be with us, how we will relate with him? Hmm? जैसे मान लीजिए एक्वेटिक्स के बीच में, he is aquatics, so animals can relate with him. Among demigods, he is a demigod, so demigods can relate with him. Among human beings, he is human being, but he is not ordinary human being, he is transcendental human being. So human beings can relate with him. So क्योंकि he becomes one of us, we are feeling that he is our father. Krishna tells in Bhagavad Gita, Sarva Yonishu Kaunteshu, I am seed giving father of all the living species. अब जब वो सबके सीड गिविंग फादर हैं, जब सबके पिता हैं, तो he has to be one of us, not like us, but he should have some resemblance. अब बंदर से monkeys, monkeys से human beings आए, वो डार्विन के लिए ठीक है, but we won't believe that, right? Tell me one example from where human beings have come from monkeys. Many human beings have been like monkeys, that is okay. They live like monkeys, but not like many monkeys can become human beings. वो संभव नहीं है. So, अगर हमको ये पता करना है कि हमारे स्रोत क्या है, what is our source, हमारा source क्या है, it has to be some resemblance with us, and therefore this is Krishna's rescue plan. कभी कभी हम लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान हमको इतना टेस्ट क्यों करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है? अगर आपको कोई सिन करना है ना, वो बहुत इजी है, बार में जाओ, जम के पाप करो, चीट अदर्स, इट्स एंजॉइंग ऑल्सो, चीटिंग ऑल्सो, एंड सिंफुल एक्टिविटी ऑल्सो। अगर आपको पाप करना है, बहुत ईजी है, एवरी स्टेप देयर इज अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटीज, और सबसे अच्छा पैकेज हम सबके पास में है सिंफुल एक्टिविटी के लिए। क्या है वो सिंफुल एक्टिविटी का पैकेज? क्या है हमारे पास वो पैकेज? 24 hours with us, 24 hours, this is the full package, कि हम लोगों के पास सिंफुल एक्टिविटी इजीली करने का मौका है। बट जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, चैंटिंग, बाप रे बाप, कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा, शांति में बैठना पड़ेगा, माला से करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी है, याद रखनी है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझनी है, फिर अप्लाई भी करनी है, क्लास भी अटेंड करनी है, सब कुछ करना है। तो स्पिरिचुअलिटी इतनी डिफिकल्ट क्यों हो जाती है? क्या भगवान को मजा आता है हमारा टेस्ट लेने में? हम लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान हमारा इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली इफ वी थिंक कौन किसका टेस्ट ले रहा है, वी विल बी सरप्राइज। सी, हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं भगवान के पास जाने की, लाइक भगवान बार बार अवतार लेके आते हैं। फॉर whom? फॉर अस। ही इन इंडिया, हर थोड़ी दूर पे कोई ना कोई होली प्लेस है, कोई ना कोई तीर्थ है। किसके लिए? हमारी गॉड कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए। हर थोड़ी दूर पे एक पवित्र नदी है। हर घर में रामायण भगवत गीता लाल कपड़े में एटलीस्ट बंधी हुई रखी हुई है, जो हम पढ़ते नहीं है लेकिन है कम से कम।
Scriptures are there. Then there are many saints, साधुस जो ट्रैवल करते हैं, प्रीचिंग करते हैं भगवत गीता के बारे में, शास्त्रों के बारे में। प्राय हर किसी के बचपन में उन्होंने देखा होगा, गांव में भागवत सप्ताह होती है, लोग भगवत गीता डिस्कस करते हैं। किसी का जन्म होता है तो अनुष्ठान होता है, किसी की शादी होती है तो कोई कथा होती है, कोई के मरने के बाद भी अनुष्ठान होते हैं जिसमें हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। सो हमारी पूरी की पूरी लाइफ ये स्क्रिप्चर से लिंक्ड है। उसके बाद इतना ही नहीं, हमको होली नेम दिया गया है, भगवान का नाम दिया गया है, जिसको हम कहीं भी किसी भी स्थिति पे जप कर सकते हैं, एंड वी कैन एसोसिएट विद गॉड। तो इतनी सब फैसिलिटी होने के बाद भी अगर हम भक्ति में सीरियस नहीं है, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस नहीं है, तो कौन किसको टेस्ट कर रहा है? हम भगवान को टेस्ट कर रहे हैं कि भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टेस्टिंग हिज टॉलरेंस, हम भगवान की टॉलरेंस को टेस्ट कर रहे हैं। जाओ तुम कुछ भी कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो निकम्मे के निकम्मे ही रहेंगे, हम नहीं करेंगे आपकी भक्ति, हम नहीं पढ़ेंगे आपके बारे में। तो दिस इज अवर इम्प्यूडेंस। और इसलिए भगवान और रेस्क्यू प्लान्स बनाते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते थे, लोग इतने डिसइंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी को आप बोलो चैंट चैंट चैंट, वो बोलेगा कैंट कैंट कैंट, चैंटिंग नहीं करेगा। मतलब कई बार तो प्रभुपाद ट्रिक करते थे लोगों को, बोले आप हरे कृष्ण जप कीजिए, तो वो बोलता था नहीं मैं हरे कृष्ण जप नहीं करूंगा। प्रभुपाद बोले अभी तो बोला हरे कृष्ण, एटलीस्ट यू सेड दैट यू विल नॉट चैंट हरे कृष्ण। लाइक वन टाइम एक न्यूज़पेपर में किसी प्रेस वाले ने एक उल्टा सीधा आर्टिकल पब्लिश किया इस्कॉन के बारे में, और डिवोटीज बहुत कंसर्न होके प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद प्रभुपाद सी ये लोगों ने कितना ब्लास्फेम किया है आपको और हरे कृष्ण को और इस्कॉन को। प्रभुपाद ने बोला पढ़ो आर्टिकल। वो पूरा आर्टिकल पढ़ा। प्रभुपाद बोलते हैं अभी आप ये काउंट करो कि ये आर्टिकल में कितनी बार हरे कृष्ण आया है। सो वो डिवोटी ने वो काउंट किया। प्रभुपाद ने बोला देखो इस व्यक्ति ने हमारा काम कितना इजी कर दिया। हम प्रीचिंग करते हैं कुछ हजार लोगों को, अभी ये न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में जाएगा, लाखों लाखों लोग कम से कम इतने बार हरे कृष्णा पढ़ेंगे और उनका डिलीवरेंस होगा। सो एक्चुअली saints and scriptures and God, everybody is trying to plan कि अरे कैसे तो इनको वापस लेके आना है। ये रॉट दे आर रॉटिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, इनको वापस लेके आना है। इसीलिए we see there are so many rescue plans, and one of such rescue plans is this month of Kartik. We are starting Kartik month from 31st of October, which is also called as Damodar month. So I will give a short description about ये month का क्या significance है. So before that I'll show you a video. What is in this video? You see, in malls many times they give free sale, free offer देते हैं कि इतने टाइम के लिए आप जाओ और जो इकट्ठा करना है कर लो फ्री में। तो आप देखो कैसी स्थिति होती है। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट। कैन यू सी माई स्क्रीन?